Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Dear students, the learning objectives of our today's class, that is at the end of this video, you will be able to define the general form of pair of linear equation in two variables, solve the pair of linear equation in two variables by graphical method, and state the condition for a pair of linear equation in two variables to have solutions. Now students, I hope you have watched the Tata Edge content related to our today's topic, and to make it more clear, let us start with an example. Let us suppose there are two children, Rahul and Pinky. They went to a candy shop to purchase some candies. और जब वे ये candies लेके वापस आए, then their mom asked to Rahul, "How many candies do you have?" And Rahul replied, "We both have total 6 candies, and I have 2 times more candies than Pinky." उसने ये नहीं बताया कि मेरे पास कितनी कैंडीज हैं और पिंकी के पास कितनी हैं। तो अब ये पता करने के लिए लेट अस सपोज राहुल के पास टोटल x कैंडीज हैं और पिंकी के पास टोटल y कैंडीज हैं। अब राहुल ने क्या कहा, आई हैव 2 टाइम्स मोर कैंडीज देन पिंकी। दैट मीन्स जो राहुल के पास कैंडीज हैं वो पिंकी की कैंडीज का 2 टाइम्स है, दैट इज डबल है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन गई मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 2y। और राहुल ने क्या कहा था, वी बोथ हैव टोटल 6 कैंडीज, मतलब राहुल और पिंकी दोनों की कैंडीज मिला के टोटल कितनी कैंडीज हैं, 6 कैंडीज। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इज नंबर 2 इक्वेशन। नाउ इन क्लास 9 we have discussed an equation is called linear equation in two variable if it can be written in this form, that is ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers and not both a and b are zeros. दैट इस लाइन का क्या मीनिंग है, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर a जीरो है तो b नॉन जीरो होगा, और अगर b जीरो है तो a को नॉन जीरो होना पड़ेगा। नाउ क्लियरली वी कैन सी दैट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0. Therefore, these two equations are linear equations in two variable. And also we can see that the variables in both the equation are common, that is x and y. Therefore, these two equations are known as pair of linear equation in two variables. The general form of pair of linear equation in two variables is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1, a2, b1, b2 and c1, c2 are real numbers. Now students, आपने देखा होगा कि अगर एक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे लिखते थे ax plus by plus c equals to 0, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जबकि पेयर की बात हो रही है तो हम दो इक्वेशंस लिखते हैं। तो इसलिए पहली इक्वेशन में a1x b1y c1, और दूसरी में डिफरेंशिएट करने के लिए हम a2x plus b2y plus c2। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y minus 1 equals to 0 and x plus y plus 2 equals to 0. इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स कॉमन है x and y, और देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड दीज 2 इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर ये पेयर क्या हो गया मेरा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। सिमिलरली
एग्जाम्पल 2 देखो, 3x plus 5y minus 10 equals to 0 and x plus 2y minus 7 equals to 0. Again in this pair, there are two variables x and y, and both the equation can be written in the standard form, which is ax plus by plus c equals to 0. Therefore, ये भी pair किसका हो गया? Linear equation in two variables. Now students, as you have seen what is pair of linear equation in two variables, now we will discuss the methods to solve these equations. There are two methods. One is graphical method and second one is algebraic method. In this video, we will discuss about graphical method. Before starting with the method, let us first understand, if we draw two lines on a plane, there can be only three possibilities. Number one, they will have no point in common, that is, there will be two parallel lines. And number two, they will have only one point in common, there will be two intersecting lines. And in third case, they will have infinite many points in common, that means will coincide each other, or you can say they overlap each other. So let us understand it further with the help of various examples. Now let us understand the graphical method with the help of this example. बेटा इक्वेशंस क्या गिवन है इस क्वेश्चन में मेरे पास? x minus 2y equals to 0 equation 1 and x plus y equals to 6 equation number 2. अब जैसे कि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा है कि इन इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है, तो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन 1 के हम पॉइंट्स निकालते हैं. इक्वेशन 1 के जो दो पॉइंट्स आएंगे, अगर मैंने y को 0 पुट किया है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? x minus 2 into 0 equals to 0, that is x minus 0 equals to 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? 0, 0. सिमिलर वे में y को 1 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो x minus 2 into 1 equals to 0, that is x minus 2 equals to 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा? 2, 1. सिमिलर वे में इक्वेशन 2 के दो पॉइंट्स निकाल लो. इक्वेशन 2 क्या है? x plus y equals to 6. अगेन y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. तो 6, 0 एक पॉइंट हो गया. एंड सिमिलर वे में जब y को 1 पुट किया तो x क्या आ जाएगा? 6 minus 1, that is 5. तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 5, 1. अब इन चारों पॉइंट्स को बेसिकली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मेरे को ग्राफिकली प्लॉट करना है. तो लेट्स से पहले इक्वेशन 1 के जो दो पॉइंट्स हैं which is 0, 0, तो 0, 0 कहाँ पे आ जाएगा? यस, ओरिजिन पे ही आ जाएगा. और दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 1, दैट इज x का 2 और y का 1. अब देख लो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो दिस इज योर 2, 1 पॉइंट. तो इसको हम नाम दे देते हैं O और इसको A. ये मेरे इक्वेशन 1 के दो पॉइंट्स हैं. सिमिलर वे में इक्वेशन 2 के दो पॉइंट्स क्या हैं? 6, 0, x6 y0. तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो गया 6, 0. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B. एंड सिमिलरली 5, 1, 5 x का और 1 y का, अगेन जहां पे ये मीट करेंगे, तो अगेन मैं रफली बना रहा हूं, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा. तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C. अब स्टूडेंट्स मुझे ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. तो फर्स्टली इक्वेशन 1 के दो पॉइंट्स कौन से थे? O एंड A. तो इनको ज्वाइन करते जो लाइन बनी, उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, दैट इज x minus 2y equals to 0. सिमिलरली इक्वेशन 2 के दो पॉइंट्स 6, 0 एंड 5, 1. इनको ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? x plus y equals to 6. अब आपने देखना है, जब मैंने इनको ग्राफिकली प्लॉट किया तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्लियरली हम देख सकते हैं ग्राफ पे कि ये जो दोनों पॉइंट है 4, 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, 4, 2 पॉइंट पे दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. देयरफॉर वी कैन से दैट 4, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन्स. और आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2.
So students, as we have seen in this case, the two lines are intersecting at one point. तो ये दोनों lines कौन सी lines होंगी? Intersecting lines. तो हमने पढ़ा है कि intersecting lines का क्या होता है? Unique solution होता है. तो therefore 4, 2 is the solution of these two lines. Now let us consider another example. Let's say equations क्या given है हमारे पास? X plus y equals to 2 and 2x plus 2y equals to 4. तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है, सिमिलर वे में पहले दो पॉइंट्स निकालो दोनों इक्वेशन के. तो जब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को, तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 लेट की तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 0. सिमिलर वे में जब y को 1 लेट किया तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1. तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया 1, 1. नाउ इन इक्वेशन 2, 2x plus 2y equals to 4. अगेन जब y को आपने 0 पुट किया तो 2x plus 2 into 0 equals to 4. That is 2x plus 0 equals to 4. तो 2x equals to 4 and x comes out to be 4 by 2, that is 2. तो अगेन फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया 2, 0. एंड जब y को 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x plus 2 into 1 equals to 4. 2 into 1 2 हो गया और ये 2 उधर जाके माइनस, तो 2x equals to 4 minus 2, that is 2x equals to 2. और फिर ये 2 डिवाइड हो गया नीचे आके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1. तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, जब आपने y को 1 लेट किया है तो x भी क्या आ गया 1, 1. अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों पॉइंट्स सेम आए हैं. अब इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफिकली. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा 2, 0. 2, 0 x एक्सेस पे x की वैल्यू 2 और y 0. एंड सेकेंड पॉइंट इज 1, 1. x भी 1 और y भी क्या है मेरा 1. तो ये पॉइंट जब जहां पे दोनों 1 कोइंसाइड कर रहे हैं दैट इज 1, 1. तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a और इसको b. अब अगर मैं इक्वेशन 2 को प्लॉट करना चाहूं तो पॉइंट तो इसमें भी सेम ही है, तो इसी जगह पे पॉइंट्स आ जाएंगे 2, 0 एंड 1, 1. नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया दैट इज 2, 0 एंड 1, 1. तो ये जो लाइन बन रही है मेरे पास, ये किस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. बट सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स क्या हैं 2, 0 एंड 1, 1. तो वो भी इसी लाइन पे लाई करेंगे. दैट मीन्स ये लाइन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 को भी रिप्रेजेंट कर रही है. तो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है. तो इस केस में मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. दैट मीन्स कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे के सारे इन दो लाइंस के सॉल्यूशन होंगे, मतलब वो इन दोनों लाइंस पे भी लाई करेंगे. तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बने कि दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करें या कोई दो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएं आपके पास, तो मेरा आंसर क्या होगा दे विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल. इक्वेशंस क्या है इसमें मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. अगेन जैसे कि पिछले दो क्वेश्चंस में हमने किया है, फर्स्टली हम इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालेंगे. तो इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है पिछले क्वेश्चन की, तो इसके पॉइंट्स भी 2, 0 एंड 1, 1 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं. नाउ इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. तो इसके लिए जब मैं y को 0 लेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास दैट इज 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, विच इज 2x प्लस 0 इक्वल टू 6. 2x इक्वल्स टू 6, तो x क्या आ जाएगा 6 by 2 दैट इज 3. तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास 3, 0. सिमिलर वे में जब y को मैंने 1 पुट किया 2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6. 2x इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 by 2 दैट इज 2. तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा 2, 1. अब अगेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स ग्राफिकली प्लॉट करने हैं. तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स क्या हैं यस 2, 0
तो 2,0 ऑन x एक्सिस एंड देन 1,1, तो जहाँ पे दोनों 1 मीट कर रहे हैं 1,1, तो ये 2 पॉइंट्स क्या आ गए इक्वेशन 1 के। सिमिलरली इक्वेशन 2 के पॉइंट्स क्या हैं 3,0, अगेन x एक्सिस पे y0 है, एंड 2,1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो 2,1 जहाँ पे 2 और 1 कोइंसाइड करेंगे तो दिस पॉइंट इज 2,1। तो जब मैं दोनों लाइंस के पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, दैट इज इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स थे 2,0 एंड 1,1, तो उसको प्लॉट करके जो लाइन बनी उसकी इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। एंड सिमिलर वे इक्वेशन 2 के पॉइंट्स क्या थे 3,0 एंड 2,1, तो उसको जो लाइन प्लॉट की तो उसकी इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो दोनों लाइंस हैं किस तरह की लाइंस हैं। ये रेलवे ट्रैक जैसा लग रहा है बेटा हमें, तो ये दोनों लाइंस रेलवे ट्रैक्स की जो लाइंस होती हैं उनको हम कौन सी लाइंस बोलते हैं, यस पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों लाइन क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या पैरेलल लाइंस कभी मीट करती हैं, नो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव नो सॉल्यूशन। तो जब भी मेरे पास ग्राफिकली ऐसी कंडीशन बने कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, तो उस केस में जो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी उसका क्या होगा नो सॉल्यूशन, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हैं, तो अगर उनकी रेशियोज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आती है, तो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दे विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं, तो दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स एंड दे विल हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस, इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then the two lines are parallel and there is no solution of these two lines. So to sum up the above method, we can conclude that if we draw lines representing pair of linear equation in two variable, three cases can happen. Number one, the lines may intersect in a single point. That is, in this case, the pair of equation has unique solution, or you can say that the equations are consistent. And number two, the lines may be parallel. In this case, the equation have no solution, and you can say that the equations are inconsistent. And third case, the line may be coincident. In this case, the equations will have infinitely many solutions, or they are dependent consistent pair of equations. So students, I hope you have understood today's topic and will be able to solve linear equation in two variable by graphical method. Thank you and have a nice day.